Alright students, let's talk about the next method of preparation which is from RX. I hope कि आपको जो पिछली दो videos है वो clear है and I hope कि there is no doubt in those particular videos. I have tried my best to explain all the things in detail as far as your course is concerned. Now let's talk about the next preparation which is from RX, that is alkyl halide. खुद सोचो, आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है alkyl और aryl halides. वहां पे आपको पता है कि RX को मैं ROH में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ. You have already read it in one of the chemical properties and you must recall it by now. That is, RX को ROH में convert करना is very simple. If I just add aqueous base, for example, aqueous KOH, right? तो अगर मैं RX में aqueous KOH add कर दूंगी, this will be giving you ROH. And you must remember by now, this is what kind of a reaction? This is nucleophilic substitution reaction. ये कौन सा reaction है? Nucleophilic substitution. In which one nucleophile, that is X negative, is replaced by OH negative, right? For example, अगर suppose मैं C2H5X ले लूँ, अगर मैं इसमें aqueous KOH डाल दूँ, तो this will give me what? This will give me C2H5OH. चाहे मैं इसमें aqueous KOH डाल दूँ, चाहे NaOH डाल दूँ, चाहे मैं moist Ag2O डाल दूँ, all will give me alcohols, all right? इसी तरीके से आप कोई भी alkyl halide ले लीजिए, अगर आप उसमें aqueous KOH डाल देंगे, then this will always give you alcohol. क्या आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद आ रहा है कि अगर मैं इसमें alcoholic KOH डाल दूंगी तो क्या होगा? Can anyone tell me what will be the product if I add alcoholic KOH, and what will the product same as that of C2H5OH or will it be different? And if it is different, what will be the product जो यहाँ पे use होगा? या what will be the product जो यहाँ पे form होगा? So this is one method of preparation. That is, one is by adding aqueous base, जैसे aqueous KOH, and it proceeds by nucleophilic substitution reaction. This is one method. Second method of preparation is if you convert RX to Grignard reagent by converting it to RMGX. Now RMGX is what? It is Grignard reagent, right? So let's proceed कि RMGX अगर हम बनाएंगे उसमें आगे कैसे alcohols बन सकती हैं. So I hope first method is clear to you. That is by adding aqueous KOH. This will simply proceed by nucleophilic substitution reactions, right? And if you will add alcoholic base, then the story will be different and you must be able to tell by now कि कौन सा product बना होगा. All right. So let's proceed with the second method, which is by converting it to RMGX. अब होता क्या है कि अगर मैं RX में यानी कि alkyl halide में magnesium add कर दूँ, then this forms RMGX. Now this RMGX is called as Grignard reagent. Obviously after the name of its discoverer. इसको हम क्या बोलते हैं? Grignard reagent. And the important point here is, in this case, opposite to what you expect, R is negative and MgX is positive. अब आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं कैसे कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम आयन हैज +2 चार्ज, X हैज 1 नेगेटिव चार्ज. तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इस पे ओवरऑल चार्ज आएगा MgX प्लस, राइट? एंड बिकॉज इट इज न्यूट्रल, सो इन दिस केस जो मेरा R है, इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज. मतलब यहाँ जो कार्बन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बेनायन एंड नॉट कार्बोकेटायन. ठीक है? जबकि बाकी मैक्सिमम 90-95% केसेस में जब आप R लिखते हो तो आप बाय डिफॉल्ट उसको कार्बोकेटायन अज्यूम करते हो. तो यहाँ जो तुम्हारा R है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बेनायन, दैट इज इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज. ऑलराइट. अब तुम्हें यहाँ नजर आ रहा होगा कि जो मैंने RMGX बनाया है, इसमें कहीं भी एल्कोहल तो है नहीं. तो एल्कोहल यहाँ से कैसे बनता है, ये अब हम देखते हैं. इससे आप एल्कोहल कब बनाते हो? जब आप इस RMGX को ट्रीट कराते हो कार्बोनाइल कंपाउंड से. कार्बोनाइल कंपाउंड्स मींस जैसे आपने क्लास 11th में भी पढ़े हैं. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट? तो अगर मैं इस RMGX का रिएक्शन किससे कराऊंगी? अगर मैं इस RMGX का रिएक्शन किसी भी एल्डिहाइड या किससे कराऊंगी? कीटोन से कराऊंगी. देन दिस कॉम्बिनेशन विल गिव मी व्हाट? देन दिस कॉम्बिनेशन विल गिव मी अल्कोहल. नाउ लेट्स सी हाउ. तो मान लीजिए आपने पहले ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनाया, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट जो है ये हमेशा एनहाइड्रस या ड्राई कंडीशंस में बनाना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होगा वो भी देख लेते हैं. देखो
अगर ये आपने मॉइस्चर की प्रेजेंस में रख दिया RMgX प्लस वाटर, मॉइस्चर है राइट, तो R नेगेटिव था, MgX पॉजिटिव था, वाटर में क्या होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब तुम बता सकते हो क्या होगा, R नेगेटिव के पास कौन चला जाएगा H, और इसके पास कौन चला जाएगा ये, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा RH प्लस MgX OH। इज इट ओके? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इसको एनहाइड्रस कंडीशंस में नहीं रखेंगे तो तुम्हारे पास जो आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो इसका मतलब जो आजकल का मौसम है, जैसे बारिशों का मौसम, तो इस मौसम में लैब में कभी भी ग्रीन नाइट्रोजन को सिंथेसाइज नहीं कराया जाता है। दिस इज ऑलवेज डन इन समर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये जो एक्सपेरिमेंट्स है, ये जो रिएजेंट है, इसकी सिंथेसिस समर्स में कराई जाती है या बहुत ही ऐसी कंडीशंस में कराई जाती है फिर जहां मॉइस्चर का कोई भी स्कोप ना हो। इज इट ओके? राइट, सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक कि मुझे RMgX से अल्कोहल कैसे मिल सकता है। तो RMgX से अल्कोहल कब मिलेगा, जब मैं इसको ट्रीट कराऊंगी किससे, एल्डिहाइड्स या कीटोन या कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड से। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, आपने पढ़ा है क्लास 11th में, विच इज फॉर्मल्डिहाइड, जिसको आप मीथेनॉल भी बोलते हैं ना, राइट। तो सबसे पहले मैं 3 एग्जांपल्स लूंगी यहाँ पे, एक मीथेनॉल का, एक कोई भी और एल्डिहाइड, सिंपल एल्डिहाइड, इथेनॉल बोल सकते हैं, और एक आई बी टॉकिंग अबाउट दिस विच इज कीटोन, ठीक है। प्लस इसको हम ग्रिग्नार्ड रीजन से ट्रीट करा रहे हैं RMgX। Now this Grignard region में R can be anything, it can be CH3, it can be C2H5, कुछ भी हो सकता है, right? It can be any alkyl group। तो सबसे पहले क्या होगा, इस केस में आप देखिए R नेगेटिव है, MgX क्या है, पॉजिटिव। तो बिकॉज दिस C डबल बॉन्ड O, यू मस्ट नो इट बाय नाउ, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है कि दिस बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। हाउ इट इज पोलर इन नेचर, क्योंकि ये जो कार्बन है दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो ऑक्सीजन है दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कहीं ना कहीं इसमें पार्शियल जो है चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। तो मैं इसको फॉर माई कन्वीनियंस आई कैन राइट इट लाइक दिस, कि ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो कार्बन विल बी अ पॉजिटिव चार्ज हियर एंड ऑक्सीजन विल बी अ व्हाट, नेगेटिव चार्ज हियर। तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे कौन अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा ऑब्वियसली, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा, HCO नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा RH। अब यहाँ नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, MgX। ये क्लियर है? दिस इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं करा मैंने, पॉजिटिव पे नेगेटिव को अटैक करा दिया, नेगेटिव पे पॉजिटिव को अटैक कराया, और कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इस केस में दिस एडिशन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये जो एडिशन है कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक है, मतलब यहाँ पे कौन भाग के आता है पहले, न्यूक्लियोफाइल, यानी कि R नेगेटिव। और क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में, ये एल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है ना, तो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। एंड बाय नाउ यू ऑल नो कि कार्बन शोज कैटिनेशन, दैट इज इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी एंड टेंडेंसी टू फॉर्म C बॉन्ड C कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ बहुत जल्दी बॉन्ड बनाता है, तो इस वजह से यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है पहले वो आता है, राइट। So यहाँ जो attack it is by nucleophile first, and that is why this addition is nucleophilic addition. You must remember it. ये addition कौन सी है? This is nucleophilic addition, right? Why this is addition? Obviously, क्योंकि यहाँ भी जो double bond है it is getting converted to single bond, so obviously this is addition. On the contrary, जो हमने पहले एग्जाम्पल गए थे वो electrophilic additions थी, ये जो addition है this is nucleophilic addition. Is it okay? अब next case में क्या होगा, अब आप इसमें ऐड कर दीजिए water। जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो देखो वाटर ऐड करने से कुछ नहीं होगा, वाटर ऐड करने से सिर्फ एक चीज होगी कि यहाँ पे O नेगेटिव और MgX जो पॉजिटिव था, सिर्फ ये जो पॉजिटिव पार्ट है दिस विल बी रिप्लेस नाउ, दिस पॉजिटिव पार्ट विल बी रिप्लेस बाय अनदर पॉजिटिव पार्ट फ्रॉम वाटर विच इज H पॉजिटिव। तो यहाँ पे O नेगेटिव MgX था, तो O नेगेटिव तो ऐसा ही रहा, बाकी सारा मॉलिक्यूल भी ऐसा रहा, सिर्फ फर्क क्या हुआ, ये जो MgX पॉजिटिव था दैट इज रिप्लेस बाय H पॉजिटिव ऑफ वाटर। तो वाटर में 2 चीजें थी, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव रिप्लेस हो गया, बचा कौन, OH नेगेटिव, वो किसके पास चला जाएगा, MgX के पास। तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgX-OH। इज इट ओके? तो यहाँ देखो जो मैंने प्रोडक्ट बनाई क्या है, दिस इज एल्कोहल। ये जो प्रोडक्ट बनाई क्या है, एल्कोहल। एंड आई थिंक यू कैन वेरी वेल गेस दिस इज कौन सी एल्कोहल, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। व्हाई दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि मेरा ये जो कार्बन है, ये जो OH है दिस इज अटैच्ड टू कार्बन which is attached to this alkyl group only along one side,
सो दिस इज कौन सी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि अगर मैं मीथेनॉल लेती हूं, जिसको आप फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, तो जब आप इसको ग्रिग्नार्ड एजेंट से ट्रीट करेंगे, देन दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू प्राइमरी अल्कोहल। लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ। प्लस, क्योंकि यहां मैं ऑलरेडी आर ले रही हूं तो मैं इसको आर डैश लिख देती हूँ या R1 लिख देती हूँ, प्लस सेम RMGX, राइट। जब मैं इसको ट्रीट करूंगी सेम फिर से वही स्टोरी है कि क्योंकि मेरा R नेगेटिव होता है और MGX क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये यहां गया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये यहां अटैक कर लेगा और ये वाला मॉलिक्यूल यहां ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल गिव यू R डैश COMGX HR, राइट। और जब मैं इसकी हाइड्रेशन करूंगी, वाटर ऐड करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा R डैश COHRH प्लस MgXOH। दिस इज अगेन एल्कोहल, ये भी क्या है, एल्कोहल, एंड आई थिंक यू नो दिस इज कौन सी एल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, राइट। तो फॉर्मल्डिहाइड से मुझे मिली थी प्राइमरी एल्कोहल, कोई भी और एल्डिहाइड यूज कर लूंगी, एनी अदर एल्डिहाइड विल गिव मी व्हाट, इट विल गिव मी सेकेंडरी एल्कोहल। नाउ लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2 प्लस RMGX। Now let's repeat the same reaction with keto. I want you people to do it by yourself. You can easily do it. सेम है, वैसे ही आपको एडिशन करानी है, वैसे ही सब कुछ होगा, और आपको बताना है कि इसमें जो प्रोडक्ट बना वो कौन सी अल्कोहल बनी। ऑलराइट, these preparations are very important from your boards as well as from the conversion point of view. यहाँ पे आपको एक से दो चीजों का ध्यान रखना है, वो ये, पहली चीज, जब भी आपको प्राइमरी अल्कोहल बनानी है RH से, तो आपको हमेशा उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको हमेशा उसमें मीथेनॉल ऐड करना पड़ेगा। फॉर प्राइमरी अल्कोहल आप हमेशा मीथेनॉल ऐड करेंगे RMGX में या फिर ग्रिग्नार्ड एजेंट में। फॉर सेकेंडरी अल्कोहल यू विल ऑलवेज ऐड एनी अदर एल्डिहाइड डिपेंडिंग ऑन आपको कितने कार्बन वाली अल्कोहल चाहिए टू फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल्स, और कीटोन से आप मुझे बताएंगे कौन सी अल्कोहल्स बनती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जैसे देखिए मैंने यहाँ अगर मैं बात करूं, यहां मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको CH3 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ जो मेरा R है वो CH3 बन जाएगा और यहाँ पे जो मेरा R है वो CH3 बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मैंने कितने कार्बन से शुरू किया था, आई स्टार्टेड विद 1 कार्बन, और यहाँ जो मेरा प्रोडक्ट बना वो कितने कार्बन वाली अल्कोहल बनी, 1 and 2। तो यहाँ जो मेरी अल्कोहल बन रही है वो कितने कार्बन की बन रही है, 2 कार्बन की बन रही है। तो मतलब मैं 1 कार्बन से शुरू कर रही हूँ और मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए, है ना, 2 कार्बन बन गए। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सीरीज। ये मैंने पहले भी पढ़ा है आपको, इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सीरीज। एसेंट का मतलब होता है असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब बढ़ना। इज इट ओके, राइट। इसका अगर मान लीजिए मुझे ये बोला जाए कि मुझे 3 कार्बन वाली अल्कोहल बनानी है, तो बहुत सिंपल है, बना लो। कैसे, किसी मीथेनॉल को उठाओ, मान लीजिए मुझे बोला जाए कि प्रोपेन 1 ओल बनाओ, तो प्रोपेन 1 ओल 3 कार्बन वाली अल्कोहल है और वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो बहुत सिंपल है, मीथेनॉल लो, उसमें यहाँ पे 1 कार्बन वाला अगर आप ग्रिग्नार्ड एजेंट ऐड करोगे तो 2 कार्बन वाली अल्कोहल बन रही थी। तो अगर मैं यहाँ पे कितने कार्बन ऐड कर दूंगी, C2H5MgX लिख दूंगी, तो यहाँ पे 3 कार्बन वाली बन जाएगी। इज इट ओके। इसका मतलब इस मेथड से मैं कितने भी कार्बन वाली प्राइमरी अल्कोहल बना सकती हूँ, सिंपली बाय चेंजिंग ग्रिग्नार्ड एजेंट। याद रखिएगा, आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन नहीं बढ़ा सकते। इसमें अगर आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा देंगे तो इट विल फॉर्म एनी अदर एल्डिहाइड, एंड इफ एनी अदर एल्डिहाइड अपार्ट फ्रॉम methanol will be there, then this will give you what? This will give you secondary alcohol, right? So the important point which you must keep here in mind is कि अगर तुम्हारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो जब भी आप ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करते हैं तो आपको ध्यान में रखनी है कुछ चीजें जो कि आपको कन्वर्जन्स में भी हेल्प करेंगे, राइट। तो पहली जो चीज है वो ये है कि अगर मैं मीथेनॉल लेती हूं HCHO और इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराती हूं, देन दिस विल गिव मी व्हाट? दिस विल ऑलवेज गिव मी प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं कोई भी और एल्डिहाइड लेती हूं और इसका रिएक्शन इससे कराती हूं, देन दिस विल ऑलवेज गिव मी व्हाट? इट विल ऑलवेज गिव मी सेकेंडरी अल्कोहल।
और क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ, although I have told you to do it by yourself, but I am sure you will do it. I trust you on this. तो this will give you what? This will give you tertiary alcohol. आप इसको करके देखिएगा, आपको tertiary alcohol मिलेगी. तो अगर आपको कभी भी पेपर में कन्वर्जन आ जाए, राइट, कि कन्वर्ट मिथेनॉल टू लेट्स से इथेनॉल, राइट, या कन्वर्ट इथेनॉल टू प्रोपेन टू ओल या कुछ भी ऐसा, तो आप ये चीज याद रखिएगा, जो भी आपको अल्कोहल आएगी पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाइएगा. उससे आप ये देखिएगा कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है. उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये लेना है, ये लेना है या ये लेना है, राइट, कि आपको मिथेनॉल लेना है, आपको कोई और एल्डिहाइड लेना है या आपको कीटोन लेना है. अगर मान लीजिए कीटोन आपको ऑलरेडी गिवन है और आपको टर्शियरी अल्कोहल बोला जाए, फिर आप ये देखेंगे, या आपको ऑलरेडी कोई एल्डिहाइड गिवन है, आपको अल्कोहल बोला जाए, फिर आपको ये देखना है कि आपको नंबर ऑफ कार्बन्स कितने बड़े हुए चाहिए. जितने नंबर ऑफ कार्बन्स बड़े हुए चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ग्रिग्नार्ड रेजिन के कार्बन्स बढ़ा लीजिए आपके हाथ में. इज इट ओके? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू मस्ट रिमेंबर एज फार एज योर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स इज कंसर्न. ठीक है? सो दिस वाज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन व्हिच वाज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स. एल्काइल हैलाइड से मैं दो तरीके से प्रिपेयर कर सकती हूँ. वन इज बाय substitution, which is nucleophilic substitution, simply by the addition of any aqueous base, and second is by converting it into Grignard reagent and then treating it with the carbonyl compounds. Is it okay? The same portion is covered in the preparation from carbonyl compounds also, तो यहीं पे cover हो गया है. ठीक है? So we are done with two preparations now. Now let's move to the third preparation, and I'll be talking about the third preparation in the next video. So I hope everything is clear to you. By that time you just practice this. And also try to add ethanol plus let's say C2H5MgX along with water. और मुझे बताइएगा क्या प्रोडक्ट बना. Is it okay? Thank you so much. We'll see you in the next video now.